So, hello there. Today is 24th of December. डेट बताने तो नहीं आई बिकॉज आई नो दैट फॉर अ फैक्ट एक एक लम्हा, पल, घंटा उसका हिसाब आप मुझसे बेहतर रख रहे होंगे अभी. यू नो एग्ज़ाम के पहले ये जो टाइम है ये बहुत नाजुक टाइम है, ये बहुत नाजुक टाइम पीरियड है. एवरी वन ऑफ यू नोज दैट फॉर अ फैक्ट, बट स्टिल आर एंजाइटी एंड एंक्शियसनेस गोज ऑफ द रूफ. अभी whatever I'm saying right now is with confidence just because I've passed the exam. Okay, but before passing the exam, ये जो time period था exam से पहले, I was a mess. I was literally like that melted ice cream on floor. Okay, and as a matter of fact, जो topper होगा ना उसका भी same ही हाल होगा. अगर exam में pass नहीं हुई तो what will my parents say? मम्मा क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट रीस्टार्ट करने की हालत है क्या? यू नो दीज थॉट्स दे आर इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल बिकॉज दे कैन आइदर पुश यू, दे कैन इवन यू नो पुल यू डाउन. मोस्टली दे पुल यू डाउन, you know, because इतने अंतर्यामी तो है नहीं हम that will you know channelize this energy and transform it into positive one. Today for fact I'm you know with a lot of confidence I'll tell you some things that you might be knowing, okay, but this will help you. If you don't know these things, you know, it is definitely going to help you. So for most of you, you might be having a clear outline idea that I'm going to do this subjects, these subjects would be later, I'm going to go through my choti copy वगैरह जो भी आपके ideas है. If you have a clear cut outline, follow your ideas. Follow whatever you have decided for yourself for this time. If you are you know in that vicious circle कि मेरा क्या होगा, I'm useless, nothing's right, I don't think I might just end this whole journey. I might just end myself. If you're that dark and that down, this is gonna help you. This video is gonna help you a lot, okay? Plus this is my choti copy that while I was preparing for this INI exam that I gave, so I made this choti copy recently and I'll tell you few things जो कि FMG में भी आते हैं, AIIMS में भी आते हैं, NEET PG में भी आते हैं. So I'll tell you few of the things, okay? And also I might make a video जिन लोगों के पास कोई छोटी कॉपी नहीं है, they don't have concise material, so you guys can comment if you need it. I can make a video of my this छोटी कॉपी, okay? एग्ज़ाम तक 17th January तक I'll be with you guys. उसके बाद I can't promise, I might vanish again, but till 17th January I'll be replying to each and every question of yours. Please message me only on Telegram because Instagram I've uninstalled and मुझे जाना भी नहीं है उस rabbit hole में, so just contact me via Telegram at the moment, okay? I'll reply to each and every one of you, I promise, okay? Only till 17th of January. उसके बाद I can't say, right? So right now I will tell you few things that will really help you, okay? With full confidence I'm telling you that if you follow these, it is going to help you. So what is the biggest difference amongst people who don't pass and the one who pass? I'm telling you as a matter of fact that it's not मेहनत, मशक्क़त, hard work or knowledge, okay? Because जो लोग का 2 टाइम नहीं निकला, 3 टाइम नहीं निकला, 5 टाइम नहीं निकला, ऐसे होंगे कुछ लोग, you know, that जिनका पहले टाइम में निकल गया उनसे ज़्यादा नॉलेज इन लोगों के पास होगा, हो सकता है, ओके? यू कांट से दैट कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर यू नो दे डिडंट डू हार्ड वर्क इसके वजह से फेल हुए. नो, दैट्स नॉट इट, दैट्स रियली नॉट इट. बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स अ लॉट जिन्होंने 4th ईयर से पढ़ा है यार. आई सॉ देम विथ माई ओन आइज, जिनका अभी तक नहीं निकला. देर इज़ दैट वन थिंग यू नो दैट यू कैन इफेक्टिवली टैकल. अभी हम उसमें नहीं जाते, इतना एनालिसिस वो एग्ज़ाम के बाद करेंगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम के बाद तो कुछ करने के लिए होता नहीं है. सो या राइट नाउ फोकस हियर, राइट? थिंग्स दैट आर रियली गोइंग टू हेल्प यू वुड बी ईच डे फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द टाइम यू आर सीइंग दिस वीडियो. बस आज से आप लोगों को हर एक दिन 100 MCQ करने हैं, ठीक है? जो भी 100 MCQ आप करोगे उसके एक्सप्लेनेशंस आपको यू विल हैव टू गो थ्रू,
it. Okay, so this 100 MCQ is something that's really non-negotiable, and I highly urge you to do this in the morning time. जब एग्ज़ाम का टाइम होता है 9 बजे 9:30 बजे होता है ना एग्ज़ाम, तो उस टाइम पीरियड में do this 100 MCQ. I'm not saying 200, okay, but 100 MCQ every day. Right now अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. Then that is one thing. After that, second thing would be make a chart. Okay, take a blank paper, make 11 columns on this blank paper. Right now I don't have my tab, but I'll insert it. Okay, so 11 columns बना लिए. First column में you'll be writing dates, ठीक है, 24 December, 25 December, 26, 17 December, ठीक है. तो वो फर्स्ट कॉलम हो गया. अभी बचे 10 कॉलम, ठीक है. 10 कॉलम के ऊपर आप हेडिंग दोगे. तो हेडिंग में आपको देना है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. So that is how your 11 columns would be there, like just like in the picture, okay. And every night before sleeping, what you are going to do is you are going to analyze that how much percent you actually gave today, okay. And many times I did this as a matter of fact, and मेरा ऐसे रहता था 30%, 20%, 60%, 70%. 30% was most of the times for me. We don't give our 100%. We say that 100% देना है. So each and every day from now on, from the time you are going to see this video, you have to give your 100%. If not 100%, then at least 90%, ठीक है. But there will be times where you will be giving like 30%, 40%. Even if you give like 20%, it's worth it, okay. Rather than giving 0%, 20% तो है. 10% के नीचे मैंने कॉलम ही नहीं बनाया because that is non-negotiable, guys. So you are going to analyze each night how much percent you gave of yourself to your preparation, ठीक है. Okay, and after analyzing, you are going to give a task for next day कि next day कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या प्रिपरेशन करना है, वो सब आप रात को ही सोचोगे, ठीक है. तो एनालाइज कर लिया कितना परसेंट दिया मैंने खुद को, मेरे प्रिपरेशन को. उसके बाद आपने कल का टास्क डिसाइड कर लिया, एंड देन थिंक हाउ मच परसेंट you are gonna give tomorrow. So think like 80%, 90%. Tomorrow I am definitely gonna give 100% of myself to my preparation. Think that and then sleep, okay. First step, 100 MCQs every day, non-negotiable. Second step, night analysis plus next day का task decide करना. Third step is while sleeping. I used to do this a lot, and I think that most of the times I really think that despite my hard work, I think this habit of visualization helped me a lot. I used to visualize कि you know results आए हैं, and I'm screaming with happiness, with joy, pass 150 के ऊपर. oh my god, I used to imagine 200 plus. मैंने तो मेहनत भी नहीं की, 200 प्लस आ गए, वाओ. एंड आई यूज्ड टू इमेजिन दैट माय मॉम हैज़ गॉन क्रेजी, ओ मेरी बेटी पास हो गई, माय ब्रदर हैज़ गॉन क्रेजी. आई यूज्ड टू इमेजिन दीज टू ऑफ माय फैमिली मेम्बर्स, एंड आई यूज्ड टू बी फिल्ड विद जॉय एवरी नाइट, you know, despite if I was not able to prepare the whole day. मतलब इतना ख़राब घटिया प्रिपरेशन हुआ मेरा उस दिन, लेकिन रात को मैं यही विजुअलाइज करके देख के सोती थी कि मैं पास हो गई. मैं एग्ज़ाम कैसे भी करके कुछ भी करके मैं ये एग्ज़ाम पास हो गई, मैं ये देखती थी. Not absolutely awake also, but you're not absolutely asleep also. That window period, it is highly important period, because at that time whatever you suggest, it might directly enter to your subconscious, and whatever you think, you really act like that. If your brain can see it, can visualize it, brain थोड़ा बुद्धू भी है, उतना ही होशियार भी है. लेकिन वो बुद्धू इसलिए है क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आता कि जो वो देख रहा है वो पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में होने वाला है, या फिर वो हो चुका है. योर ब्रेन, इफ़ यू कैन सी समथिंग, इफ़ यू कैन इमेजिन समथिंग, योर ब्रेन इज़ गोना थिंक दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड. सो ऑटोमेटिकली if you're seeing that, and if it
enters your subconscious, you are gonna pass, man. You are gonna pass. You will start vibrating at that frequency. Right now आप लोगों को लग रहा होगा इसको बंद करो और पढ़ाई करो, आप वो भी कर सकते हो. End of the day, स्टडी से जितना आप पढ़ोगे उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि अरे इतना पढ़ा है, ऑब्वियसली पास तो होंगे. लेकिन अगर आपने पढ़ाई थोड़ी कम भी की हो और आपका कॉन्फिडेंस कम है, तो विजुअलाइज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. तो एक तो पढ़ाई कर लो, एक तो पढ़ाई के साथ विजुअलाइजेशन कर लो. लेकिन अगर आप ये दोनों को मिला दोगे तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज़ just invincible. That thing is really invincible. You know, I've been doing that a lot and I can't stress that enough. So that is the third thing. And now the fourth thing would be friends. Okay, friends are they're like salt. Okay, they're really like salt. So उनके बगैर सब कुछ bland होता है, right? तो फ्रेंड्स के साथ बातें करो. Now here choose wisely. There might be few people who inherently are very tensed and anxious. I was one of them. लेकिन मैं कभी दिखाती नहीं थी, मैं कभी बोलती नहीं थी. मैं बोलते टाइम यही बोलूँगी, अरे मैं पास नहीं होंगी तो और कौन होगा, जाके फॉर्मेलिटी करके आनी है, बस पास तो होना ही है. आई यूज्ड टू से दैट. मतलब डर कितना भी हो, कितनी भी फटी पड़ी हो, बट वो दिखाना नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है. तो if your words are positive, people will want to talk with you. If you say कि मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, I'm gonna do terrible, do you think that other person would want to talk with you? No, right? So choose a friend who is going to say अरे अपन दोनों पास होने ही वाले हैं, you know, अपने सिवा और कोई डिज़र्व ही नहीं करता वगैरह. वो जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है वो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव मत सोचो. और अगर सोच भी रहे हो तो ज़ुबान से मत निकालो. ठीक है. तो टॉक टू फ्रेंड्स, टॉक पॉजिटिवली, डिस्कस टॉपिक्स, उसको सिखाओ, या फिर जो टॉपिक आपको हार्ड जा रहा हो एंड यू आर सीइंग कि अरे इतने सारे GTs में ये टॉपिक आ चुका है बट यू आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. फॉर मी दैट टॉपिक वाज हेमेटोलॉजी. FMG के टाइम पे हीमैट मेरा मतलब कुछ था ही नहीं. और वो जो इतने सारे कैंसर्स नहीं है, M1 M2, ये अपना हॉजकिन्स लिम्फोमा, क्लासिक वाले, नॉन हॉजकिन वाले, इट वाज जस्ट कुछ समझ में ही नहीं आता था. देन आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट ये वाला पार्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा. उसने समझाया, मुझे समझ गया. So if you encounter a topic that is very very important and you're just not understanding, discuss it with your friend, you know, ask that person to explain it to you. ठीक है. हो जाएगा एग्ज़ाम में सब कुछ हो जाएगा. चिल मारो अभी. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ क्रेडिबिलिटी पार्टनर. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेडिबिलिटी पार्टनर होना ही चाहिए. मेरी ज़िंदगी में मेरी मम्मी इज़ माई क्रेडिबिलिटी पार्टनर. इवन इफ शी डजंट अंडरस्टैंड द सिलेबस, आई विल बी टेलिंग हर, मम्मा आई नीड टू डू दिस, दिस इज एंड एट नाइट आई यूज्ड टू टेल हर दैट मैंने ये किया, बस अभी इतना वाला बचा है, या फिर ये मैं कल कर लूँगी, कल के इसमें ऐड कर दिया. आई यूज्ड टू जस्ट टॉक टू हर. It doesn't matter whether she was understanding or not. She used to just ask me, आज का जो गोल है वो तेरा हो पाया या नहीं, और नहीं हो पाया तो कितना % बचा है. We used to talk in amount of like percentages because that was easier for her to grasp. ठीक है. So you need a credibility partner. Now you can make your friend your credibility partner, your parents your credibility partner, your siblings. और अगर कोई है ही नहीं जो इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने के लिए, सो यू कैन वॉइस मैसेज मी ऑन टेलीग्राम. आई विल बी योर क्रेडिबिलिटी पार्टनर टिल 17th of January. Okay. Then the sixth point is the utmost important point, the last point that is going to help you a lot, and that is every fourth day give GT. Okay. डजेंट मैटर कितना स्कोर करा है, क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ मैटर नहीं करता. 4th डे पे GT दे दो, आँख बंद करके, मतलब आँख खोल के, ऑफ कोर्स क्वेश्चन पढ़ने के लिए एंड स्टफ. गिव GT एवरी 4th डे. ओके, एवरी 4th डे. एंड एनालिसिस भी उसी दिन ख़त्म करो. 4th डे को आपका बस उतना ही काम है कि 300 MCQ आपको करने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है. आता है तो भी पढ़ो, नहीं आता है तो भी पढ़ना है. एक्सप्लेनेशन यू विल नीड टू गो थ्रू ऑल द 300 वालों के.
ओके बस चौथे दिन को उतना ही काम करना है, सो जाना है, ठीक है. सो दैट इज़ इट एंड आई विल बी टेलिंग यू फ्यू थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम में वो आते ही आते हैं, ये आपको आना ही चाहिए. सो या यू सी लॉट ऑफ वैल्यूज़ ओवर हियर. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रैंडम वैल्यूज़ दैट यू नीड टू नो. इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि पेशेंट का शरीर कौन से स्टेट में है इफ़ दीज वैल्यूज़ आर गिवन. कई बार ऐसे होता है ना, लैब्स दिए रहते हैं, यू डोंट नो नॉर्मल रेंज. नाउ देर इज़ अ चांस कि वो लोग नॉर्मल वैल्यू आपको देंगे एंड देर इज़ अ चांस वो लोग नहीं देंगे. अगर नहीं दिया तो बहुत नुकसान है आप लोगों का, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है. क्लोरीन की वैल्यू, पोटेशियम की वैल्यू, सोडियम की वैल्यू, CO2 की वैल्यू, pH की वैल्यू, इनकी नॉर्मल रेंजेस आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है. तो एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चंस आते हैं. आपके किडनी पे, रीनल सिस्टम पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद कुछ सिंड्रोम्स आप लोगों को आने चाहिए. ऑफ कोर्स योर डी जॉर्ज सिंड्रोम, वॉन हिप्पल-लिंडाउ सिंड्रोम, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. जो एनीमिया है, जो आपका वो सीता वाला निमोनिक है, वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है. होमर-राइट रोजेट्स आपको कौन से चीज़ों में दिखेंगे, दैट यू शुड नो. न्यूरोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, पिनियलोब्लास्टोमा, ठीक है. उसके बाद वो प्राडर-विलाई सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, वो भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन फर्स्ट पेज ऑफ माई छोटी कॉपी एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. वो जो हीम वाला जो पाथवे होता है, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन किस पे आएगा मैं बता देती हूँ. एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, ठीक है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, उसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो देख लो. कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया एंड योर पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा, ठीक है. उसके बाद एनीमिया मैंने बता दिया आप लोगों को. इलेक्ट्रोलाइट्स के वैल्यूज़, ठीक है. देन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, या इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे. MAP, FAP, HNP-CC, ठीक है, वो वाला कर लेना. फिर या डायबिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर अगर क्वेश्चन ना आए ना, आप लोग मुझे लिटरली बता देना. लेकिन ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ जिसमें एंडोक्रिनोलॉजी है, डायबिटीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया. मतलब एक तो फार्मा के हिसाब से आएगा, फार्माकोलॉजी थ्रू आएगा, या फिर मेडिसिन का क्वेश्चन आएगा, पैथोलॉजी, बहुत सारा ओवरलैपिंग एरिया है. सो आई थिंक डायबिटीज़ इज़ वन टॉपिक दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. If you really want, then I can make a separate video discussing all these topics that I find are very important. वाला देख लो, respiratory वाला सीन, ये टेबल आ जाता है कई बार, okay, and this is something that you should know, ठीक है. तो this thing, it will help you. It's pretty basic and that is something that you should know. This is very important guys. Antiplatelet drugs, ठीक है, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एंटीकोएगुलेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. फिर उसके बाद आई थिंक ओके, इस किताब में सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं अभी वीडियो में बोलूँगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा. आई मेक ए सेपरेट वीडियो एंड आई गो थ्रू ऑल दिस फास्ट वे में, ओके. सो व्हाटएवर 6 पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट and follow it, incorporate it in your life till 17th of January and you're gonna crash it, you're gonna smash it, okay. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, okay. You are gonna pass, ठीक है. and उसके बाद पार्टी देनी पड़ेगी. Bye.